Good morning, do nights. Today is 7th of October, Thursday, and from today, Navratras are starting. साथ में बोलो जय माता दी. Close your eyes for the morning prayer. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. सुप्रभात प्रिय छात्रों, आप सभी को नवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं. मां भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें. इसी कामना के साथ आज मैं मां भगवती की एक प्रार्थना प्रस्तुत करने जा रहा हूं. खड्गं चक्रगदेषु चाप परिघान् शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्धतिं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमस्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तोत्सपितौ हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षरसपरशृङ्गदेषु कुलिशं पद्मं धनुकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसीमचर्म जलजं घण्टासुराभाजनम्. Open your eyes and be at ease. Now answer some questions to yourself. Why do we celebrate Navratri festival? What is its relevance in today's world? Why do we keep fast? Why do we starve? All these questions are being answered by our English teacher Saraswati Kaul Bhatt. So listen to it attentively. Good morning, students. I am Saraswati Kaul Bhatt, and on behalf of Doon Public School, I would like to extend my warm wishes to you all on the occasion of Navratri festival. Today I am here to share some thoughts with you all. Durga Puja is famous Hindu festival which is mostly celebrated in the states of West Bengal, Assam, Tripura, Odisha and Bihar with great enthusiasm and zeal. It is believed that this festival exemplifies the victory of good over evil, as goddess Durga had killed the demon Mahishasur. Legend has that owing to a boon bestowed upon it by Lord Brahma, Mahishasur could only be defeated by a female warrior. When Lord Indra was vanquished in the battlefield, the Holy Trinity, Brahma, Vishnu and Shiva, created Durga, and each part of her body was blessed with strength, with energies of different gods. On the day of Durga Ashtami, she made use of the weapons that symbolize the masculine strength to defeat Mahishasur with a trident. In this festival, women tend to take the center stage while being a stark reminder of how women used to hold a lot of more power and status in ancient India. In India, we observe Navratri for 9 days where we pray and worship goddess Durga, who is considered to be the goddess of love and courage. But the irony is that people bow
before the idols, but fail to acknowledge the presence of Durga that resides in every girl and subject her to embarrassment and fear. I hope all these tendencies will go away from our society and an era of peace and respect will come for all the women. With these thoughts, I again wish you a happy Navratri. May Goddess bless you all. Thank you. हर साल हमें बार बार नवरात्रि याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन की नैया सिर्फ और सिर्फ नारी यानी कि स्त्री ही पार लगा सकती है। नवरात्रि में हम माता रानी के 9 रूपों की पूजा करते हैं और कन्याओं को पूजते हैं और मेरे विचारों से आप सहमत भी होंगे और आगे इन्हें पूरा करेंगी हमारी हिंदी अध्यापिका आशा गुलाटी जी। सुप्रभात। मैं आशा गुलाटी नवरात्रि के उपलक्ष्य पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिनमें देवी का पहला रूप शैलपुत्रिका, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां स्कंद माता, 6ठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी, 9वां सिद्धिदात्रिका है। यह पूजा महिलाओं के शक्ति के सम्मान में की जाती है। यह पर्व पूरे भारत में बड़े उत्साह और विश्वास के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान कुछ भक्त उपवास और प्रार्थना स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए रखते हैं। इस पर्व का मनुष्य के जीवन में अपना विशेष महत्व होता है। इससे न केवल विशेष प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में उत्साह एवं नव ऊर्जा का संचार होता है। अष्टमी व नवमी के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है और उन्हें खुश करने के लिए भोजन, फल और एवं दक्षिणा दी जाती है। हमारे समाज में लड़कियों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। मैं चाहती हूँ कि अगर उन्हें अष्टमी व नवमी के दिन पूजा जाता है तो उन्हें इन 2 दिनों के अलावा बाकी दिन भी क्यों नहीं पूजा जाता, अर्थात हमें उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को नवरात्रि पर हार्दिक शुभकामनाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पंक्ति की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल मैं आप सबसे कर रही हूँ। मैं जवाब देती हूँ, क्योंकि पुत्र की लालसा में कुछ सभ्य इंसानों ने बेटियों को मारना शुरू कर दिया। बेटियाँ जो कि जीवन का आधार हैं। नवरात्रि का त्यौहार हमें बार बार इस बात की याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ कभी खिलवाड़ मत करो और उसके द्वारा बनाई गई इस सुंदर प्यारे उपहार को संजो कर रखो। बेटियां जो कि घर की जान हैं, शान हैं और रौनक हैं, इनको प्यार दो। अब इन्हीं सब भावनाओं के साथ हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर आपको माता रानी की तस्वीर फ्री हैंड सिखा रही हैं। चलो मिलकर सीखते हैं। विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवती हे शितिकन्या
कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दूर्धरधर्षिणि दूर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिनि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मधशोषिनि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमिणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभगन्धिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शतखण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्डगजाधिपते रिपुगजगण्डविदारणचण्डपराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातितखण्डविपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते यत्र नार्यस्तु पूजते रमते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं पर देवता का निवास होता है। तो आज से अपनी मम्मी, अपनी बहन, दादी, नानी सबका सम्मान करो, तभी आपके घर में खुशहाली आएगी। मेरा भारत महान तभी बनेगा। बच्चों मेरे साथ आप 3 बार बोलोगे, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। जय हिंद।